Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn about Federal Excise Act 2005. Inshallah, in this video we will cover the introduction of Federal Excise Act. However, the examiner may ask few important questions from this introduction. Later on we will also cover the definitions, then sections, and in the end we will give the most important and most repetitive questions which were asked in the previous papers. So let us move to our video and the structure of this series, that how we will cover one by one in every video what we will cover. So let us move. Important areas to cover. What we will cover: important introduction, important definitions, important sections, most repetitive question from past papers, and important multiple choice question which may come in the paper. After every video, in the end of every video, I will give you a small and quick glimpse of a website where from you can cover, where from you can practice after watching this video. What you can practice MCQs, just like I'm going to give you a little lecture on this introduction of Federal Excise Act. Then once you watch this video till the end, then you can go and practice the all those MCQs of introduction of Federal Excise Act which may be asked by the examiner in upcoming exam. So inshallah to it is expected by the members and many senior members that Federal Public Service Commission may conduct this Inspector Inland Revenue test in December, from 9 to 24 December, or it may be conducted in the January. So let us move to our important lecture today about introduction of Federal Excise Act. Now, a student, a candidate, an aspirant must know these points about the introduction of any act of Federal Board of Revenue, or these are all three acts: Federal Excise Act, Sales Tax Act, and Income Tax Ordinance. So a student must know the genesis of this act, when this act was introduced, when it passed in Pakistan, what is the main object of this act, why this act was given or introduced. So आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए कि ये एक्ट क्यों दिया गया। इसी हवाले से हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको आज इंट्रोड्यूस करेंगे। यकीनन ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। यकीनन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहले ही तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छा कमांड हो इस सब्जेक्ट पे या इस एक्ट पे, तो वो अगेन सुन सकते हैं अपनी क्लियरेंस के लिए या अपने रिवीजन के लिए। इंशाल्लाह जो ही हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद हम इसका दूसरा सेक्शन पार्ट पढ़ेंगे डेफिनेशंस का। जो डेफिनेशन समझ जाएगा उसको फिर सेक्शंस में समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। When it was passed, an object of this act and how many chapters are there in Federal Excise Act। एक स्टूडेंट्स को जानना चाहिए कि इस एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, और ये बात भी याद रखी जाए कि आप अगर प्रीवियस पेपर्स उठाकर देखें तो उसमें मोस्टली जो एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो कॉन्सेप्ट के तो हैं ही है, लेकिन उसमें ज़्यादातर टाइटल्स ऑफ सेक्शंस को रिपीटेटिवली पूछा गया है प्रीवियस पेपर्स में। तो अगर आपको
कंसेप्ट क्लियर होगा तो यकीनन आपको टाइटल भी याद हो जाएंगे. Once you clear your concept, then you must remember the titles of these sections. Remember the schedules in this act. ये भी याद रखिए कि इसमें कितने स्केड्यूल्स हैं. अब स्केड्यूल सेक्शंस ही आप सुनते रहते हैं, लेकिन आपको पता है क्या स्केड्यूल्स होते क्या हैं? ये भी हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करेंगे. आगे बढ़ते हैं. यू मस्ट रिमेंबर एवरीथिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. अब बढ़ते हैं पहले पॉइंट पे. वो तो हमने ये जानना था कि हम पढ़ेंगे क्या इस इंट्रोडक्शन में. अब इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट यहाँ से होता है कि फेडरल एक्साइज एक्ट कब पास हुआ, तो वो 2005 में पास हुआ. इसी के हवाले से अगर पॉइंट हमने नोट करना हो तो ये दूसरा क्वेश्चन यही पूछता है कि 2005 में पास हुआ, लेकिन कौन सी डेट पे. तो ये क्वेश्चन it shall come into force on first day of July 2005. Most of the time examiner has asked and has confused the students that Federal Excise Act came into force on dash day of July, the first day of July. He may ask first day of dash 2005. Then he will give you options just like June, July, October, or January, or December. Then you must mark the right option, that is first day of July 2005. Similarly, what is the main object of Federal Excise Act? ये एक्साइज एक्ट जो है, फेडरल एक्साइज एक्ट, ये क्यों दिया गया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मेन, हम सिंपल वर्ड्स में कहें, बहुत सादा अल्फाज में, कि फेडरल एक्साइज एक्ट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया, वो ड्यूटी, वो टैक्सेस लेने के लिए उन चीज़ों पे जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनती हैं या असेंबल होती हैं. अब उसमें गुड्स आ जाते हैं और सर्विसेज. प्रोडक्ट्स का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस्ड हुई हों या असेंबल हुई हों इन पाकिस्तान. अब उसमें क्या हो सकता है, सिंपली पाकिस्तान में जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं, जूसेस, सिगरेट्स बनते हैं, सिगार्स, नेचुरल गैस जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, फ्लेवर्स होते हैं, या मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं. इसी तरीके से सर्विसेज में अगर आ जाएं तो सर्विसेज में टेलीकम्युनिकेशन हो जाती है, शिपिंग हो जाती है, इनलैंड कैरियज हो जाता है, एयर ट्रेवलिंग जैसे आपके एयर ट्रेवल सर्विस या आ जाती है, PIA वगैरह. तो इन जो सर्विसेज दी जा रही हैं, इंटरनेट DSL की PTCL है, उसके हिसाब से जो सर्विस दी जा रही है उस पर कितने टैक्स लागू होंगे, तो उस पर सारा फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू होगी. ठीक है. तो इसी तरीके से ये पॉइंट आपने ये क्या है, बेसिक एक ऑब्जेक्ट है. सिर्फ जो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जस्ट कीप ऑन cramming Federal Excise Act, sections, schedules, chapters, but they must know the basic object of this act. Similarly, how many chapters are there? We will also introduce in this video the names of chapters. So a candidate must know the chapter's name as well. Once he will clear the inside material of this chapter, inside the learning or the main points of that chapter, that how many sections are covered in that chapter, then he will memorize the title of that chapter. इसी वाले से एक पॉइंट जो मैं इधर मिस कर गया हूँ वो ये कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्रेमिंग भी करना चाहते हैं तो उसको भी तरीके से किया जाता है. जैसे जो चैप्टर्स हैं उसमें ऐसा होगा कि आपके जो एक्ट्स होते हैं ना, वो अगर आप चैप्टर वाइज याद करेंगे ना तो हमेशा आपको याद रहेंगे. लेकिन अगर उसको आप जस्ट क्या करेंगे, वन बाय वन आप मेमोराइज करेंगे तो आपको शायद ना याद हो. तो चैप्टर का जो टाइटल होगा ना
उसके हिसाब से जैसे चैप्टर 3 है, किसका चैप्टर 2 है या चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट में क्या आ जाती हैं, सारी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। वो पेनल्टीज या ऑफेंसेस जो टैक्स ना अदा करने पे या टैक्स में कोई आपने खराबी मतलब झुकाया है, लेकिन उसमें क्या किया है, थोड़ा सा आपने एरर खुद इंटेंशनली डाल के तो आपने दिए हैं कि भाई मेरा टैक्स इतना बनता है लेकिन इतना लिया गया है, या मेरा थोड़ा बनता है आपने ज़्यादा लिया है, तो उस पर भी पेनल्टीज़ है। कैसे कि अगर आप झूठ बोल के दे दें कि भाई नहीं मेरा इतना टैक्स बनता है, वो जो कि झूठ हो, लेकिन एक्चुअल जो बनता है वो आपने उसको सही ना झूठ करा दिया। इसी तरीके से अगर ऑफेंसेस एंड पेनल्टी जो 3rd चैप्टर है इसका, इसमें फिर आपको अगर चैप्टर का नेम याद रहेगा तो उसके अंदर उसके सारे सेक्शन उसी के हवाले से हैं, तो वो भी आपको याद रहेंगे। तो आगे हम जब सेक्शन में आएंगे ना, मतलब सेक्शन के पार्ट में आएंगे, तो यकीनन आपको मैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये मेमोराइज सेक्शन कैसे किए जाते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि जो फेडरल एक्साइज एक्ट है ये कहाँ कहाँ इन्फोर्स किया जाता है, तो ये पूरे पाकिस्तान में फैला है, इसका फैलाव है, ये पूरे पाकिस्तान में एक्ट करता है, इन्फोर्स किया जाता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी रेस करते हैं एग्जामिनर कि फेडरल एक्साइज एक्ट एक्सटेंड्स टू पंजाब, सिंध, होल पाकिस्तान, तो आपने सारा होल पाकिस्तान या इंटर पाकिस्तान पे मार्क करना है। इसी तरीके से ये पॉइंट हमने कवर कर लिया पहले, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1st डे ऑफ जुलाई, जो कि आपने याद रखना है कि कब हुआ था इन्फोर्स या कब किया जाता है, कब किया गया था, 1st डे ऑफ जुलाई 2005। अब सेक्शंस कितने हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देयर आर डैश नंबर ऑफ सेक्शन इन फेडरल एक्साइज एक्ट, तो 49 सेक्शंस हैं। इंशाल्लाह जब हम ये सारे सेक्शंस कवर एक्ट्स कवर करेंगे तो लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे सेक्शंस को कंपेयर किया गया हो, जैसे कि जो डिफॉल्ट सरचार्ज है वो फेडरल एक्साइज एक्ट में कौन से सेक्शन नंबर पे है, कौन सा सेक्शन है नंबर का, और इसी तरीके से सेल टैक्स में किस नंबर पे, अगर इनकम टैक्स में तो वो किस नंबर पे। तो ये भी इंशाल्लाह मैं इंट्रोड्यूस करूँगा बहुत जल्दी। हम डेली बेसिस पे कुछ 2 से 4 वीडियोस इंट्रोड्यूस इंशाल्लाह कोशिश करें ताकि हमारा इन्हीं 4-5 दिनों में सारे एक्ट पूरे हो सकें। तो 49 सेक्शंस हैं, वो भी 1 बाय 1 हम पूरे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो कवर करवाने की कोशिश करूँगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिनमें से 50 to 90% चांसेस होते हैं आने के। इसी तरीके से कितने स्केड्यूल्स हैं, अब ये स्केड्यूल्स होते क्या हैं वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, बताऊँगा कि ये क्या होते हैं। जो स्केड्यूल्स हैं, वो क्या होते हैं कि अगर जो पॉलिसी मेकर है या जो इकोनॉमिस्ट है जिसने भी ये क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया गया है फेडरल एक्साइज एक्ट, तो उसने अगर कोई लिस्टिंग करनी हो या कोई टेबल देनी हो मेजरमेंट की कि भाई फलां गुड पे या फलां सर्विस पे इतनी ड्यूटी लगाई जाएगी, तो वो इसका एक इसकी एक क्या है उसूल है कि जब भी कोई एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके सेक्शन के अंदर ही उसमें नहीं बताया जाएगा, नहीं टेबल दी जाएगी, इसलिए उसमें क्या किया जाएगा, उसकी टेबल वो सारी लास्ट टेबल या लिस्ट या कोई भी मेजरमेंट हो वो कहाँ दी जाएगी, 49 सेक्शन, जहाँ जैसे कि फेडरल एक्साइज एक्ट में 49 सेक्शन है तो उसके बिल्कुल आखिर में 49 सेक्शन पूरे हुए तो लास्ट में टेबल आपको दी जाएगी कि अकॉर्डिंग टू दिस स्केड्यूल इतनी ड्यूटी लगाई जाती है। और जैसे कि किसी सेक्शन में भी अगर मिसाल तौर किसी सेक्शन में किसी गुड्स का जिक्र किया जा रहा है तो उस पर अगर कोई ड्यूटी होगी तो वो कहेंगे कि इसी एक्ट में बताया गया कि फलां गुड पे जो ड्यूटी लगेगी वो फलां नंबर स्केड्यूल के हिसाब से लगाई जाएगी। तो ये टेबल लास्ट में दी जाती है।
आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गूगल पे आप जस्ट इतना सर्च करेंगे तो आपको एक्ट पूरा मिल जाएगा। जब आप एक्ट पूरा डाउनलोड करेंगे फेडरल एक्साइज एक्ट, तो उसके कंटेंट में ही आप देख लेंगे कि स्केड्यूल कहाँ कहाँ दिए गए हैं, तो वो पूरे सारे लास्ट में दिए जाते हैं। तो फेडरल एक्साइज एक्ट में कितने स्केड्यूल्स हैं? 4 स्केड्यूल्स हैं, ये हमेशा याद रखना। इसी तरीके से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्थ स्केड्यूल इज ओमिटेड, क्योंकि ये 2021 में हुआ है। 2021 में पेपर ये फर्स्ट टाइम आया है, एग्जाम आ रहा है, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये इस हवाले से एक करंट नॉलेज है, इसमें करंट अमेंडमेंट है। तो फोर्थ स्केड्यूल इज ओमिटेड इन 2021 बाय फाइनेंस एक्ट 2021। तो इसी हवाले से अगर पूछा जाता है कि व्हेन फोर्थ स्केड्यूल ओमिटेड, तो 2021 में, तो वो पूछ सकता है। उसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं 2020, 2021, 2019 या 18, तो आपने मार्क करना 2021। और अगर पूछे किस एक्ट के हिसाब से, तो फाइनेंस एक्ट 2021। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है कि ये जो मैंने आपको बता दिया सिंपली कि फाइनेंस के एक्ट के हिसाब से ओमिट किया गया, उसके हवाले से अब क्या है कि स्केड्यूल जो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चैप्टर्स नेम भी आपको हमेशा याद रखने हैं, जिसका भी मैंने थोड़ा जिक्र पहले ही कर लिया है कि चैप्टर्स नेम आपको तभी याद होंगे आपको जब सेक्शन आप पूरे पढ़ लेंगे ना। जैसे कि चैप्टर का नाम ही सिर्फ क्या है, लीवी कलेक्शन पेमेंट ऑफ ड्यूटी है, तो यकीनन उसमें सिर्फ टैक्सेस या ड्यूटीज़ जो जो लगाई जाएंगी, जिस पे जितनी लगाई जाएंगी और किस पे एडजस्टमेंट हो सकती है और कितनी लायबिलिटी होती है एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसकी कितनी वैल्यू डिटरमिन की जाएगी, और इसके जो फेडरल एक्साइज एक्ट है उसमें रजिस्ट्री कैसी करवाई जाएगी, ये सारी चीज़ें चैप्टर के हवाले से, चैप्टर के टाइटल से ही आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है। तो चैप्टर्स का नेम जब आप याद करेंगे तो उस हवाले से आपको फिर सेक्शंस के भी नेम याद करने पड़ेंगे। जब सेक्शन के याद हो जाएंगे, जब चैप्टर का याद रखेंगे, तो यकीनन सेक्शन का भी आपको उस हिसाब से याद आ जाएगा। अच्छा, यू मस्ट रिमेंबर सम कॉमन पॉइंट्स जस्ट लाइक फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर। अच्छा, ये हमेशा आपको याद रहे कि जो पहला चैप्टर होगा किसी भी एक्ट का, हमेशा कौन सा होता है? प्रिलिमिनरी का, जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये इसकी जो टाइटल है वो क्या है, किसका शार्ट टाइटल किसका होता है? इस एक्ट का। और ये कहाँ तक फैलाया गया है? तो पूरे होल पाकिस्तान में इन्फोर्स किया जाता है। और इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट कब हुई है, मतलब कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये सारा चैप्टर 1 इसके हवाले से होता है। सेकंड जो चैप्टर 1 में इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो जैसे कि आप सेक्शंस आगे पढ़ते हैं ना, तो सेक्शंस को समझने के लिए भी आपको कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ही आप क्या समझेंगे? सेक्शंस को समझेंगे। ये ना कि आप डेफिनेशन को स्किप करके आप बस क्रैमिंग करते रहें सेक्शंस की, तो वो यकीन करें जब आप फेडरल एक्साइज एक्ट पूरा याद भी कर लेंगे ना इस तरीके से, तो आप जब सेल टैक्स या इनकम टैक्स पे आप टर्न होंगे, तो फिर आपको जब सेल टैक्स याद करेंगे तो पीछे फेडरल एक्साइज एक्ट आपको भूल जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि डेफिनेशंस को पढ़ें। मोस्टली डेफिनेशंस जो फेडरल एक्साइज में होंगी, कुछ कुछ उसमें से रिपीट होंगी सेल टैक्स में, तो वो आपकी रिवीजन होगी, तो आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अब आते हैं कि फर्स्ट चैप्टर, तो हमने क्या कहा कि फर्स्ट चैप्टर जो फेडरल एक्साइज एक्ट का है वो प्रिलिमिनरी का होगा। इसी तरीके से जो लास्ट चैप्टर होता है ना, वो कौन सा होता है? मिसलेनियस का या सप्लीमेंट प्रोविजंस का। अब सप्लीमेंट क्या उसमें, अब देखें ना, पहला चैप्टर जिसमें इंट्रोडक्शन होता है सारा, जो लास्ट वाला होता है, जो बाकी चैप्टर होते हैं जिसमें वो अनफिट होते हैं टाइटल के नाम से, सेक्शंस, वो सेक्शंस जिसमें चैप्टर के नेम के हिसाब से सेक्शन अनफिट हो, तो वो लास्ट चैप्टर में सप्लीमेंट प्रोविजन या मिसलेनियस के हवाले से ऐड किए जाते हैं उसके अंदर, कि वो किसी और चैप्टर में फिट नहीं हो सकते, वो बाकी से
उन पर डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमने कितने पढ़े थे, कितने हैं फेडरल एक्साइज एक्ट में? चैप्टर 6 है। तो पहला एक्ट जो पहला जो चैप्टर है वो है प्रिलिमिनरी का। उसके बाद जो सेकंड है वो है लेवी कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी। इसमें कितने टैक्स या कितनी ड्यूटी लगाई जाएगी, कलेक्ट कैसे की जाएगी, तो इस हवाले से। उसी तरीके से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज थर्ड चैप्टर है। अगर कोई बंदा ड्यूटी अपनी पे नहीं करता टाइम पे, या अगर करता है लेकिन पूरी नहीं करता, या उसने क्या किया है, इनपुट या एडजस्टमेंट कर रहा है और वो उसने गलत एडजस्टमेंट की हो, तो इस हवाले से अगर वो ये सारी गलतियां करते हैं तो उस पर ऑफेंसेस या पेनल्टीज उस पर कितनी लगाई जाएंगी, तो वो था सारे थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर क्या है, सर्चेस, अरेंट एंड सीजर। ये कौन सा चैप्टर हमारा हो जाता है? ये हमारा हो जाता है फोर्थ चैप्टर, जिसमें किस किस को क्या होता है, सर्च और अरेस्ट वगैरह, इसके किसका पावर वगैरह सारा हम इसका पढ़ेंगे। पावर एडजुडिकेशन अपील्स, कहाँ कहाँ हम एक इंस्पेक्टर एंड लैंड रेवेन्यू का जो मुलाजिम है उसके ख़िलाफ़, उसके डिसीजन के ख़िलाफ़ हम कहाँ अपील अपनी जमा करेंगे। उसके बाद में जो बाकी जितने भी सेक्शंस रह जाते हैं वो सप्लीमेंट्री प्रोविजंस के हिसाब से जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें जो अनफिट हैं बाकी चैप्टर में, वो सारे यहाँ दिए जाएंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर वीडियो के बाद में आपको कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से भी कुछ गाइड करूँगा। तो जैसे कि हमने आज पढ़ा है इंट्रोडक्शन ना, तो इंट्रोडक्शन के हवाले से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपको आज थोड़ा सा उनका एक क्विक ग्लिम्स दूंगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देता हूँ। उस वेबसाइट से जाके आपने क्या करने हैं, इस ही वीडियो के हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज़ शेप में। तो आए बढ़ते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ इम्पोर्टेंट वेबसाइट है जहाँ पर आप इन सारे एमसीक्यूज़ को, पॉइंट्स को एमसीक्यूज़ के शेप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये है वेबसाइट एमसीक्यूज़ प्लेटफॉर्म के नाम से, जो कि हमारी इस चैनल के हवाले से ही है। और आप सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस है इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू का, उन सारों को आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हमने आज पढ़ा है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। तो जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको इधर बहुत दो सेक्शंस मिलेंगे। एक तो वो जो आपको एमसीक्यूज़ शेप में होंगे, और उन ही एमसीक्यूज़ को अगर आप क्विज शेप में प्रैक्टिस करना चाहें तो आप क्विज शेप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, एमसीक्यूज़ ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट को हम ओपन करते हैं। अब ये हो गया, इसमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ सकते हैं। प्लीज़ प्रैक्टिस देम थ्राइस एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट फॉर द टेस्ट। जब आप 3 मरतबा इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको यकीनन एक बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपके इम्तिहान में। अब देखें, ये बहुत सारे, अब जैसे आज हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। फेडरल एक्साइज एक्ट वाज पास्ड इन 2005। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन फेडरल एक्साइज एक्ट? 6 चैप्टर। देयर आर डेश सेक्शन, तो कितने हैं? 49 सेक्शन हमने पढ़े। फेडरल एक्साइज एक्ट हैज़ डेश schedules 4. The products which are produced inside Pakistan, taxes levied on those products are called as federal excise duty. चैप्टर 1 किसके साथ डील करता है? टाइटल एंड डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया। Which schedule of federal excise act recently omitted? कौन सा हुआ था? फोर्थ स्केड्यूल, सही है जो मैंने आपको पढ़ा। When the fourth schedule of federal excise act was omitted from the act 2001, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। अब ये बात जो मैंने आपको समझानी, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 वाज इन्फोर्स्ड ऑन फर्स्ट डे, ठीक है ना, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005। अब देखें, और ऑल गुड्स अवेलेबल इन द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट आर ड्यूटेबल गुड्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये जस्ट हमारी वीडियो से आउट ऑफ, ऐसे समझें कि जो मैंने पढ़ाया, लेकिन 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एफपी
ऐसे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए आप इनको अब किस शेप में आप कर सकते हैं, क्विज फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। इधर क्लिक करें क्विज फॉर्म को, या आप वापस बैक जाके क्या कर सकते हैं, ये फेडरल एक्साइज एक्ट क्विज, इनको अब यहाँ फेडरल एक्साइज एक्ट क्विज में जो ऑप्शन दिया गया वो है रैंडम, या उनको क्या शफल हुए पड़े हैं सारे क्वेश्चंस। उसमें यकीनन फर्स्ट पे आपको फर्स्ट वाला नहीं मिलेगा। अगर फर्स्ट पे आपको फर्स्ट वाला मिले तो आपका माइंड बस वही ऑप्शन नंबर के हिसाब से याद कर लेता है। इसलिए हमने इसमें जो सेटिंग की हुई है वो सेटिंग ये की हुई है कि हमने रैंडम और शफलिंग वाला ऑप्शन रखा हुआ है ताकि माइंड स्टूडेंट का चल सके, ना कि सिर्फ नंबर के हवाले से उसको याद हो जो आंसर। अब देखें यहाँ पर अब ये क्वेश्चन हमारे से देयर आर डेज सेक्शन ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट कितने हैं 49। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये करेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपने कोई गलत करना है स्ट्रक्चर ऑफिसर जैसे कोई इसको गलत करते हैं मिसाल तो ये सारा रॉन्ग ऑप्शन आपको शो करेगा। तो इसी हवाले से जो भी आपने आज की वीडियो के हवाले से जितने भी हैं वो आपको मिल सकते हैं, इधर सारे होंगे इधर। अब कब पास हुआ था ये देखें, फेडरल एक्साइज एक्ट वाज पास्ड इन 2005। ये सारे आपको मिलेंगे इधर। तो इसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह अगली जो वीडियो हम बनाएंगे वो डेफिनेशंस के हवाले से बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गिव यू रिस्पांस एज सून एज पॉसिबल, and soon we will upload the new video about definition of federal excise act. Similarly, we will also upload all three sections acts, sales tax act, income tax and federal. So we will cover whole the syllabus in few days. In this way, all those students who were unable to prepare themselves in previous previous precious days so they can now prepare themselves for this exam of inspector in land revenue. Thank you very much. Thanks for giving us your precious time. So Allah Hafiz, inshallah we will meet in next video of Federal Excise Act definitions. Allah Hafiz.